और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजय शिर्के को सचिव पद से हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बीसीसीआई लागू नहीं कर रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया है। इन दोनों को कोर्ट की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 साल से लगातार ये कहा जा रहा था कि लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिशें हैं, सुधार की जो सिफारिशें हैं, उन्हें लागू करे बीसीसीआई, लेकिन इसे लागू करने में बीसीसीआई अब तक नाकाम रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कार्रवाई हुई है। और इस मामले पर जस्टिस लोढ़ा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाएं। There were obstructions, there were impediments. We fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen and this has happened. The point is the way it has been dragged on for some time. BCCI was trying to take or trying to purchase some time. Now finally probably it's a case of overconfidence on the part of BCCI not to have taken the Supreme Court seriously. I don't read whether they were overconfident or not, but one should understand that when the order of the Supreme Court, which is the highest court of the land, has come, it has to be obeyed by all. It is law of the land. Nobody can escape it. The majesty of law has worked, and Supreme Court order, Supreme Court itself has ensured that its order of 18 July is now enforced. Cases of perjury will be going on against Anurag Thakur. In a way, he can't escape the law of the land anymore. I haven't read the order, so I can't comment on this question right now. Were you expecting this? As I told you, this was a logical consequence, because so long as order of the Supreme Court passed on 18 July stands, BCCI was bound to. As I told you, this was a logical consequence, because so long as order of the Supreme Court passed on 18 July stands, BCCI was bound to follow it. And being at the helm of affairs, if they were not able to implement the Supreme Court order, these consequences were bound to follow, and that is what has happened. Justice Lodha, doesn't this throw the game of cricket into turmoil? No, surely not. Actually, it's the victory for the game of the cricket, and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go, but ultimately it is for the benefit of the game, and game will flourish, I'm very sure. Sir, is your role over now? Because the Supreme Court has also asked that an interim committee be set up. Sorry, again, I haven't read the order, but surely if that's what we would like, that the committee's role is over. As a matter of fact, it was over once we submitted our report on 4th January 2016. और आशीष हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कुछ ऐसे ही रुख की अपेक्षा की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि लास्ट सुनवाई में जस्टिस टीएस ठाकुर ने बहुत सख्त रुख दिखाया था इस पर। देखिए, पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ परजुरी का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। इस पर सवाल पूछा था, हालांकि उस समय कपिल सिब्बल ने माफी मांग ली थी। लेकिन सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को उनके पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी अजय शिर्के को भी उनके पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और फली नरीमन से 2 नाम पूछे हैं, जिनको प्रशासक नियुक्त किया जा सके बीसीसीआई में। जब तक जो गैप है, उसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बीसीसीआई और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम काज देखेंगे। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर की मुश्किलें इस बाबत बढ़ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कोर्ट की अवमानना, यानी जो लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिशें थी उसे लागू न करने को लेकर, और दूसरा परजुरी यानी कोर्ट में झूठा यानी गलत हलफनामा दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। बहरहाल पूरे मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी, लेकिन क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बेड़ा उठाया था, आज वो मुकाम पर पहुंच रहा है, ऐसा कोर्ट के आदेश के बाद लग रहा है, क्योंकि बार बार लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर भी बीसीसीआई की तरफ से कोई व्यापक कदम नहीं उठाए जा रहे थे, जिस बाबत कोर्ट ने ये कठोर निर्णय लिया है। इतना साफ हो गया है कि अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के अब अपने पद पर नहीं रहेंगे। आशीष, आज कोर्ट में हुआ क्या अपने बीसीसीआई की ओर से कोई दलील रखने की कोशिश आज की गई थी कि क्यों देरी से हुई?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने जब इस बात को देखा कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की तरफ से कोर्ट को गुमराह किया गया है, जो हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है वो सही नहीं है, तब कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया कही थी और पूछा था कि क्यों ना इनके खिलाफ परजुरी का मुकदमा चलाया जाए। बहरहाल उस समय पूरे मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है जिसमें से अनुराग ठाकुर और अजय सिकरे इन दोनों को ही उनके पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और फली एस नरीमन से नाम पूछे हैं जिनको प्रशासक नियुक्त किया जा आशीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। विनोद लांबा हमारे खेल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये बड़ी कार्रवाई है और क्रिकेट के सबसे बड़े प्रशासक अब अपने पद पर नहीं रहेंगे, ये सीधा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट का। बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और अजय सिरके जो कि सेक्रेटरी थे अब हटा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। वो इस मामले में अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। उनका कहा है कि उनका कहना है कि मैंने अभी कॉपी पढ़ी नहीं है, उसके बाद बीसीसीआई कार्रवाई करेगी और बीसीसीआई इसका जवाब देने की कोशिश करेगी। लेकिन अब इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, लगातार चेतावनी दी जा रही थी, बीसीसीआई के पास कुछ बचता नहीं है। ऑब्जर्वर नियुक्त करने के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बीसीसीआई को कैसे चलाना है वो काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि सारे रास्ते पहले ही कई बार एप्लीकेशन लगाई गई थी। जैसे आशीष लगातार नजर बना के रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, कई बार कोशिश की गई थी कि लोधा कमेटी की रिकमेंडेशंस को हम मान रहे हैं, अभी आप फैसला मत लीजिए या फिर पूरी कार्रवाई को ही रद्द कर दीजिए, लोधा कमेटी की सिफारिशों को रद्द कर दीजिए। तो स्टैंड लगातार कड़ा रहा था बीसीसीआई के पास। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था की तरफ से और कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो मानना पड़ेगा। और ये इसी मामले में अगर श्रीनिवासन का केस याद आता हो, लगातार उन्होंने भी बचने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार जब हटे, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, यहाँ अब बीसीसीआई के पास बचने के लिए मुझे कोई रास्ता नजर आता नहीं है। अब देखना है कि जिस तरह से वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई जाती है और किस तरह से रिएक्ट किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। आशीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त फैसला आया है, अनुराग ठाकुर और अजय सिरके दोनों को उनके पद से हटा दिया है, साथ ही अनुराग ठाकुर पर अब अवमानना का केस भी